Are you a working professional and preparing for CAT and you are a little worried? How do you go about it? अगर आप काम कर रहे हैं, आपकी जॉब स्ट्रेसफुल है, there are a lot of things that will come to your mind. Among those, one of them being, should you leave your job? These are different things. How do you optimize your time? How do you optimize your performance? क्या क्या करना चाहिए? कैसे सोचना चाहिए? क्या माइंडसेट रखना चाहिए? सो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, कुछ थॉट्स हैं, कुछ आइडियाज हैं और कुछ कंसर्न्स और वरीज हैं जो हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करती रहेंगी इस प्रोसेस में. सो विल डिस्कस दिस टुडे. विल ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. एज आई ऑलवेज से, सबके लिए यूनिफॉर्म एडवाइस नहीं काम कर सकती. एवरी टू ईच इंडिविजुअल हिज ओन, राइट? You make your own individual choices, but I'll try to guide you to the best of my ability. What is it that you should be doing? I'm Prashant, I'm the founder of Word Pandit, and I'll take you through this journey as smoothly as I can. So let's get started. What is it that working professionals should think to begin with? First thing is mindset shift. I want you guys to have a positive mindset. You have an advantage. Some of you would have taken CAT before, so you know the exam. You have experienced work pressures in your job, so you know how to deal with pressure. So those are positives in your personality. You know why you want to do an MBA, right? So use these. These are three positives that you possess. So use these to your advantage. What the time problem is real for you, we'll keep it realistic as well. We know you have 8 to 10 hours during weekdays and you have weekends that carry the heavy load. एंड कम्यूट टाइम इज इंपॉर्टेंट. यू नीड टू ऑप्टिमाइज इट. टाइम का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा. टाइम, अगर आप ये एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट कर लो कि इतना ही टाइम है मेरे पास, ये लिमिटेड टाइम है और मुझे इसको ऑप्टिमाइज करना है, तो तुम ऑप्टिमाइज कर पाओगे. इफ यू कीप पुशिंग योर सेल्फ एंड कीप टेलिंग योर सेल्फ, नहीं मैं तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ूंगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें करूंगा और इस शेड्यूल में क्रैम कर लूं, देन यू विल बिगिन टू स्ट्रगल. वो नहीं करना है. कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल हैं, जैसे 2 RCs स्टार्टिंग में, एक, फिर उस पर 2 पे जा सकते हो. 2 RCs के साथ साथ 1 से 2 LRDI सेट ऑन अ डेली बेसिस, ये करने ही करने हैं. 1 मॉक एवरी 10 days. वीकली कॉन्सेप्ट्स का रिव्यू, जो तुमने एक कॉन्सेप्ट मैथ्स का एक टारगेट करोगे 1 हफ्ते में, उसको रिव्यू करना. ये सारी चीजें हैं जो तुम्हें दिमाग में रखनी है. ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन है, कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए. क्लासरूम कोचिंग तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगी. ऑनलाइन कोर्सेज, टारगेटेड कोर्सेज देखो जो तुम्हारी नीड को फुलफिल करते हैं, तुम्हारी वीकनेसेस को हेल्प करते हैं. जितना तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है, you don't want your time to go away. You want to optimize it. So pick what works for you. Be very, very picky. Be very, very choosy. As a working professional, you need to make some very smart choices with the amount of material you're choosing, the kind of material you're choosing, the kind of choices you're making with respect to coaching, because these would dictate how you perform in the exam. You don't have unlimited time. You have limited time. So your time optimization comes first more than anything else. So you got to keep that in perspective. अगली चीज, कॉलेज स्टूडेंट के साथ तुम्हारा कंपैरिजन. ये अब हमने पॉजिटिव्स तो देख लिया, थोड़े से नेगेटिव्स भी देख लेते हैं. कॉलेज स्टूडेंट्स के पास काफ़ी टाइम अवेलेबल होता है, चाहे जितना मर्जी बोल लो. कॉलेज में आपको, कॉलेज और जॉब में बहुत फ़र्क है. और जॉब में जब आप आते हो तो आपको एक्चुअल प्रेशर पता चलता है. कॉलेज में कई बार हाफ डे होती है क्लासेस, मास बंक लगते हैं, लॉट्स ऑफ हॉलीडेज, लॉट्स ऑफ ऑफ डेज, एंड इन जनरल evenings are spare time, so they have a lot of time, right? Or in comparison to jobs, evenings में तो आप शायद you would be getting free at 6-7 p.m, reaching home by 8 p.m, so that just alters the dynamic itself, right? क्लासरूम कोचिंग कर सकते हैं, करियर प्रेशर नहीं है, मॉक्स दे सकते हैं, पीयर ग्रुप है, फ्रेश माइंड एवरी मॉर्निंग. ये तो इनके लिए यार बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं. हमें यहाँ पे दुखी हो जाना चाहिए, है ना? पर हम अगर देखें तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको चैलेंज करने के लिए हम अपना कम्यूट टाइम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. ऑफिस इंटरनेट को वाइजली यूज करो. रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट मेक्स MBA ऐसे. सेकंड राउंड में तुम्हारे लिए ये इजी हो जाएगा चीज़ें. वाई MBA की स्टोरी इजी हो जाएगी. PI में तुम्हारे को हेल्प करेगा. यू नो व्हाट एन IIM डिग्री विल चेंज फॉर यू. सो ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो. ये वाली चीज़ें ठीक है यार, जिसके पास है उसके पास होने दो. तुम्हारे पास जो है उतने पे फोकस करो, उतने पे ध्यान दो. अगला जो एक सवाल है कि शुड यू क्विट योर जॉब, इसका मैं मोटा मोटा आंसर दूं तो मेरा यूनिवर्सल आंसर इसके लिए होता है नो, राइट? सिंपल आंसर, ठीक है. Short answer is almost never. 18 years of my career, I have seen people quitting their jobs and then they struggle in the second round of interviews justifying their break, right? और एक और रीज़न है,
पीपल हु आर डूइंग वेल इन देयर जॉब्स, हु आर एबल टू मैनेज, आप शायद उतना ही टाइम, हमें लगता है साइकोलॉजिकली अगर हमारे पास पूरा दिन होगा तो हम बहुत पढ़ लेंगे, बट मोस्टली व्हाट आई हैव सीन इज दैट people, if they're free for the whole day, they will find ways to kill time, right? They will find days, they'll find ways जहाँ से वो उस टाइम को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, दे विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. सो नेट ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब छोड़ के तुम्हारी रेडिकली प्रेपरेशन चेंज हो जाएगी. ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये होता है. और सेकंड, एक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, राइट? जब आपके दिन में जॉब नहीं रहती है तो आपका दिमाग, ह्यूमन ब्रेन बड़ा यार नॉटी चीज़ है, ठीक है? खाली दिमाग शैतान का दिमाग है. सो उसको और कुछ करना है, ये कर लूँ, इंटर्नशिप कर लूँ, ये कोर्स कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, दिमाग इधर उधर भागना शुरू कर देता है. सो कोशिश करो, पहली कोशिश होनी चाहिए कि जॉब नहीं छोड़नी, मुझे जॉब के साथ मैनेज करना है. अगर आपकी जॉब आपको पूरी तरह कंज्यूम कर रही है, खा रही है, 12 घंटे आपके काम में है, 2 घंटे 3 घंटे कम्यूट में है, 6 घंटे बच रहे हैं और उसमें आपके पास कुछ बचता ही नहीं है, एंड द जॉब इज सो टैक्सिंग, इट इज एन एक्सट्रीम केस सिनेरियो. और कुछ कुछ जॉब्स ऐसी होंगी जो इतनी एक्सट्रीम होंगी, उस केस में यू हैव टू टेक अ जेन्युइन कॉल, राइट? बिकॉज अगर जीरो टाइम है, ठीक है, दिन में अगर आप 2 घंटे भी नहीं निकाल पा रहे, सिंपल सा चेक है, अगर तुम 2 घंटे कंसिस्टेंटली प्रेप के लिए निकाल पा रहे हो ऑन अ डेली बेसिस, यू शुड कंटिन्यू विद द जॉब, राइट? नहीं निकाल पा रहे हो, देन दैट इज द सिचुएशन इन विच यू क्विट द जॉब, जब तुम्हारे को नहीं अलाउड है. ओनली वन थिंग दैट एक्चुअली मैटर्स, इट्स नॉट हाउ मेनी आवर्स, इट्स हाउ यू स्टडी कंसिस्टेंटली. सो अगर वो 2 घंटे कंसिस्टेंटली निकाल पा रहे हो ना, तो देन यू आर इन अ गुड प्लेस, यू विल बी एबल टू डू थिंग्स अ लॉट बेटर. कंसिस्टेंसी ट्रम्प्स दोज नंबर ऑफ आवर्स. हफ्ते में एक बार 10 घंटे पढ़ लेना और हफ्ते में हर रोज 2-2 घंटे रेगुलरली पढ़ना, वो 2-2 घंटे वाला लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो एक दिन की लर्निंग से. सो इसको कोशिश करो कि तुम कंसिस्टेंटली पढ़ पाओ, जॉब के साथ मैनेज कर पाओ. कोशिश यही होनी चाहिए कि जॉब ना छोड़नी पड़े. इट्स गुड फॉर योर प्रोफाइल, इट्स good for keeping yourself motivated, and you'll optimize your time better. You will know the value of your time. So that is something that you should keep in mind, right? अगली चीजें, 7 चीजें जो वर्किंग प्रोफेशनल्स को करनी चाहिए. दीज आर द थिंग्स अराउंड विच योर शेड्यूल शुड बी बेस्ड. पहली, रूथलेस टाइम ऑप्टिमाइजेशन. अपने 2 फोकस स्लॉट्स दिन के चूज करो. कर सकते हो अगर, एंड दिस प्योरली डिपेंड्स इफ यू आर एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन. अगर सुबह 1 घंटा बिफोर लीविंग फॉर द जॉब यू कैन टेक आउट, एंड 1 आवर लेट इवनिंग, दैट इज ग्रेट. और अदरवाइज इफ यू कांट डू दैट, इफ यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो 2 घंटे जॉब से वापस आके शाम को निकालो, बट टाइम स्लॉट अपना फिक्स कर लो. और उन टाइम स्लॉट्स में ना, दुनिया में कुछ भी हो जाए, है ना, धरती हिल जाए, तुम अपने उस फोकस से नहीं हटने चाहिए. तुम्हें वो रूथलेस टाइम ऑप्टिमाइजेशन करनी ही पड़ेगी. इनको मीटिंग्स की तरह प्रोटेक्ट करो एंड मेक श्योर यू डोंट लूज आउट ऑन दीज टाइम स्लॉट्स, ठीक है? सेकंड, अपना स्टडी प्लान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा. तुम्हें पहली चीज़ क्या करनी पड़ेगी, सारी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स निकालने पड़ेंगे, उसमें से देखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, वीक एरिया कौन सा है. शायद तुम्हें ऑनेस्ट रियलिटी ये भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे, बट अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो. जो एब्सोल्युटली वीक एरियाज हैं, जो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रहे हो, उनको छोड़ना पड़ेगा. मीडियम में है, जो मिडिल में है और स्ट्रॉन्ग एरियाज है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मैक्सिमाइज करो, राइट? अगेन, टाइम ऑप्टिमाइजेशन में ये भी इंक्लूडेड है कि तुम्हारा स्मार्ट स्टडी प्लान होना चाहिए. सब कुछ नहीं कवर करना, हाई वेटेज टॉपिक्स को पहले कवर करने की कोशिश करो. और अपने प्लान्स, रोलिंग प्लान्स रखो, 2 वीक्स के प्लान्स, रादर देन मेकिंग ए रिजिड 6 मंथ प्लान. क्यों? इसका क्यों कारण, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? जॉब में पता नहीं यार, कभी क्या हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा. सो यू रियली नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दो सिनेरियोस. 2 हफ्ते में अगर कुछ स्किप हो गया, मिस हो गया, तो यू कैन गिव योर सेल्फ दैट एक्सटेंशन एंड कवर इट इन द 3rd वीक, राइट? एंड मेक योर शेड्यूल्स दैट वे दैट देयर इज इनफ फ्लेक्सिबिलिटी to cover for exigencies, to cover for things which happen, which are outside of your control. ठीक है? नेक्स्ट, प्रायोरिटाइज आरओआई टॉपिक्स जिन पे रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे बहुत अच्छी है, उन टॉपिक्स को करो. जैसे क्वांट में अरिथमेटिक और अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है, अलाडीए में सेट सिलेक्शन, आरसी में एक्यूरेसी, आरसी में नॉलेज टॉपिक वाइज बिल्ड करना. जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनके ऊपर फोकस करो, लिख लो. सो ये दोनों चीज़ें देखो हैंड इन हैंड. प्रायोरिटाइज आरओआई टॉपिक्स एंड बिल्ड अ स्मार्ट स्टडी प्लान. दीज आर 2 थिंग्स दैट यू शुड बी डूइंग. जिन लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है वर्किंग प्रोफेशनल्स में, लीव अ कमेंट इन दिस वीडियो एंड आस्क फॉर माय हेल्प. आई विल हेल्प यू रिफाइन योर शेड्यूल अ लिटिल बेटर, राइट? कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, और आप क्या बेटर कर सकते हो. सही गलत तो खैर एक जजमेंटल वर्ड है,
बेस्ट वे ऑफ सेइंग इट इज क्या आप बेटर कर सकते हो, आई ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन, राइट। अगली चीज, यूज कम्यूट एंड डाउन टाइम। जैसे आपको अब रीडिंग करनी है यार, अगर आप कैब लेके जा रहे हो तो सिंपल सा फंडा है यार, अपने कम्यूट में आर्टिकल्स पढ़ लो। रीडलाइट.in में रन इसीलिए करता हूँ कि आर्टिकल्स विद एनालिसिस तुम्हें मिल जाए और तुम आर्टिकल हर रोज पढ़ पाओ। हर रोज 4 आर्टिकल मंडे टू सैटरडे आते हैं, उनका एनालिसिस भी आता है, उनको रीजन भी आता है कौन से पढ़ने चाहिए, उसमें से 2 पढ़ लो 4 में से और चेक कर लो एनालिसिस से तुमने कितना समझा। दैट टेक्स केयर ऑफ योर रीडिंग। रीडिंग इज कंप्लीटली सॉर्टेड फॉर कैट 2026 स्टूडेंट्स। रीडलाइट इज द बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स। सो रीडिंग में तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए है। साथ साथ मेंटल मैथ, वोकैब फ्लैश कार्ड्स, जो जो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स, उनको सबको, जो भी चीजें तुम पैसिवली कंज्यूम कर सकते हो, राइट, उसको कंज्यूम करने की कोशिश करो। पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट वो होनी चाहिए जो आपको नॉलेज दे। पॉडकास्ट वो नहीं जैसे कि जिस पे हम आजकल जैसे चलते हैं कि हर आदमी ने अपना पॉडकास्ट बनाया हुआ और मसाला और न्यूज़ उस पे कवर कर रहा है, वो वाली नहीं। सो पॉडकास्ट विच आर से बिजनेस केस स्टडीज, और विच आर सेज अबाउट फिलोसफी, और विच टीचेस यू अबाउट साइकोलॉजी, थिंग्स विच टीच यू कॉन्सेप्ट्स, राइट, यू फोकस ऑन दोज। ऑडियो बुक्स विच टीच यू कॉन्सेप्ट्स। सो ये चीजें जब करने लग जाओगे तो जो तुम्हारा पैसिव टाइम है, डाउन टाइम है, उसको भी यूज कर सकते हो। और अगर जॉब में ब्रेक मिलने का टाइम मिलता है तो कभी एक डीआई सेट लगा लिया, 5 कॉन्ट के क्वेश्चन लगा लिए। ये चीजें करनी पड़ेंगी। लिटिल नुक्स इन कॉर्नर्स, है ना, छोटी छोटी जगहों से 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट चुरा चुरा के तुम अपने दिन में जो वो 2 घंटे का प्रेप टाइम था उसको 3 घंटे तक स्ट्रेच कर सकते हो, 3 साढ़े 3 घंटे तक, अगर ये छोटी छोटी चीजें करोगे, राइट। नेक्स्ट चीज हमेशा याद रखना, मॉक टेस्ट कोर प्रेपरेशन है। चाहे तुम जो मर्जी कर लो, यू शुड बिगिन विद इनिशियली 1 मॉक पर वीक। इसको एक्चुअली फर्स्ट 2 मंथ्स में 10 डेज पे भी एक मॉक कर सकते हो, राइट। सो 3 इन अ मंथ, राइट, 10 to 12 डेज में। ऑल्टरनेट वीक्स कर लो, 2 वीक्स में एक बार कर लो, शुरू शुरू के फेजेस में 2 महीने में। उसके बाद इंटेंसिटी बिल्ड करो और मॉक हर हफ्ते का 1 2 ही दो। तुम्हारा जो मर्जी हो जाए, प्रिपरेशन में जो मर्जी चल रहा हो, तुम मॉक नहीं मिस कर सकते हो। तुम्हें ये गांठ मान लेनी है बात की। मॉक इज अ प्रेपरेशन टूल, इसको हमेशा याद रखो। मॉक के एनालिसिस तुम्हें बताएगा कहाँ रॉन्ग हो, कहाँ स्लो हो, कौन से क्वेश्चन स्किप करने चाहिए थे। ये चीजें बिना मॉक्स दिए तुम नहीं सीख सकते हो। हेंस मॉक्स को अपना जो भी स्टडी प्लान बनाओ, मॉक तो वहां पे होना ही चाहिए, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैनॉट स्किप। नेक्स्ट, बर्नआउट अवॉइड करो। 1 फुल डे ऑफ पर वीक, राइट, इज नॉट लेजीनेस। कोई ना कोई डेज अपने ऑफ रख लो। अब तुम्हारे लिए चैलेंज जो है ना, मैं इसमें कन्फ्लिक्टिंग एडवाइस दे रहा हूँ और मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वीकेंड्स तुम्हें ऑप्टिमाइज करने हैं, है ना, और वीकडेज में तुम जॉब पे जा रहे हो, तो कैसे ये बैलेंस करोगे दोनों चीजों को, राइट। ये इस तरीके से तो 7 दिन तुम ट्रेडमिल में भाग ही रहे हो, राइट। वीकडेज पे भी पढ़ाई करते हो, ऑफिस भी जाते हो, थोड़ा थोड़ा वीकडेज पे पढ़ते हो, सैटरडे संडे पूरा पढ़ाई में लगा देते हो, तुम तो बर्नआउट हो जाओगे। छोटी छोटी चीजें करने लग जाओ। एक किसी वीकडे को अपना ऑफ रख लो, इवनिंग को गो आउट, हैंग आउट, एंजॉय योरसेल्फ। वीकेंड्स में आधा दिन कभी निकाल लो, ऑफ रख लो, या फ्यू आवर्स, सपोजिंग संडे इवनिंग यू कीप इट फॉर योरसेल्फ। सो कीप अ कपल ऑफ इवनिंग्स फॉर योरसेल्फ। कभी कभी जिस वीक में बहुत अच्छा फ्लो बन रहा हो उसमें सारे हफ्ता पढ़ लो और एक दिन जाके ऑफ ले लो। एवरी 2 वीक्स टेक अ संडे फुल ऑफ। कुछ ऐसी चीजें करो दैट तुम्हारे रूटीन में थोड़ा थोड़ा सा बर्नआउट अवॉइड करने का भी स्कोप रहे। और स्लीप और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने मर्जी बिजी हो तुम दिन में, मैं तो ये खुद बोल रहा हूँ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, आई एम टेरेबल विद दीज 2 थिंग्स, स्लीप एंड एक्सरसाइज। आई स्लीप लेस, आई डोंट एक्सरसाइज, एंड यू whenever I get into this habit I suffer, right। तो मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो मर्जी करो ये तो करना ही करना है, इसके बगैर नहीं चल सकता। ये तुम्हारा फ्यूल है बॉडी के लिए, इसको तो करना ही पड़ेगा, राइट। विदाउट फ्यूल यू कांट ऑपरेट। और माइंडसेट, राइट, you are ahead in every way. You've got to keep that in mind. Your work experience helps in DILR, interview rounds. Progress might feel weak, but most successful CAT takers from jobs average 8 to 10 months of consistent prep, not crash courses. So crash courses से ज़्यादा तुम्हारी consistent prep, तुम्हारा mindset, what does the job give you positively and what is it that you can do along with it, those are the things that are going to define you. So focus on those, optimize those, and you should be in a good place. ठीक है, चलिए एक सैंपल शेड्यूल है ये, दिस इज अ सैंपल शेड्यूल, राइट, बिकॉज आई एम सेइंग सैंपल शेड्यूल, सैंपल ऑप्टिमाइजेशन। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीजें करनी होंगी, यूनिवर्सली कुछ कभी अप्लाई नहीं करता। ये एक सैंपल ऑप्टिमाइजेशन है। लेट्स सपोज
कोई स्टूडेंट ए है या स्टूडेंट एक्स है जो जॉब में है, वर्किंग प्रोफेशनल है, उसके पास थोड़ा टाइम कम्यूट में होता है, थोड़ा टाइम सुबह होता है, थोड़ा टाइम शाम को होता है, उसको अपना शेड्यूल क्या बनाना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस. सो जस्ट अ सैम्पल शेड्यूल फॉर यू, राइट. मॉर्निंग में 30 मिनट्स बिफोर वर्क 2 आरसी पैसेजेस कर लो, टाइम्ड विद एनोटेशन, मेक नोट्स, नो फोन, नो न्यूज, क्विक शार्पेस्ट 30 मिनट्स. कम्यूट के जो 20 मिनट्स है उसमें आर्टिकल पढ़ लो, कल का आरसी पैसेज दोबारा पढ़ लो, गलतियां अपनी उसमें देख लो, एनालिसिस कर लो, पैसिव रिव्यू योर एरर लॉग, वोकैबुलरी, जो भी नॉन असेंशियल, राइट, नॉन टेस्टिंग एक्टिविटीज, एसेंशियल तो नहीं बोलना चाहिए, नॉन टेस्टिंग एक्टिविटीज है जो तुम कम्यूट में कंज्यूम कर सकते हो विदाउट हैविंग टू सॉल्व विद अ पेन एंड पेपर, वो वाली सारी एक्टिविटीज कम्यूट में करने की कोशिश करो. लंच और अदर ब्रेक्स अगर पॉसिबल हो तो कहीं पे 2 बीए के क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है. अब फंडा देखो यार, ये कितनी अमेजिंग चीज है. 2 बीए के क्वेश्चन लगाते हो, अगर एक पूरा हफ्ता 5 डेज करते हो तो 10 क्वेश्चन पैराग्राफ, सपोजिंग पैराग्राफ समरी के कर रहे हो तुम, तो तुमने 10 क्वेश्चन कर लिए पैराग्राफ समरी के, ये 2-2 ब्रेक्स में करके. ये 10 क्वेश्चन तुम अदरवाइज करते ही नहीं, ठीक है, ये तुमने करने ही नहीं थे. एंड इफ यू डू इट फॉर एवरी वीक, 4 वीक्स में तुमने 40-50 क्वेश्चंस कर लिए, विच इज गुड कवरेज फॉर पैराग्राफ समरी, राइट. सो कंसिस्टेंसी इज गोइंग टू डिफाइन एवरीथिंग फॉर यू. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो करते जाओ. इवनिंग में कॉन्ट के कॉन्सेप्ट्स के लिए टाइम रखो और एलआरडीआई के सेट्स के लिए 45 मिनट्स टू 1 आवर इवनिंग में रखो. सुबह 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स अपने रखो, बीच की ब्रेक्स ऑप्टिमाइज करो. वीकेंड्स पे मॉक पूरा 1-2 मॉक दो, प्लस अपना जो भी टॉपिक तुम कर रहे हो मैथ्स का उसको कंप्लीट करो. हर वीक मैथ्स के डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द टॉपिक 1 से 2 हफ्ते हर कॉन्ट के टॉपिक को दो, उस पर एफर्ट डालो और उसको परफेक्ट करने की कोशिश करो. ऐसे अपना शेड्यूल बनाओ. और उस टॉपिक के बाहर ना दुनिया नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए. अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हो तो फिर अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हो, उसके बाहर दुनिया में कुछ और एग्जिस्ट करना नहीं चाहिए. क्योंकि अगर अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करते करते तुम अरिथमेटिक का सोचने लग गए तो ना तो वो अरिथमेटिक होगा ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा, दोनों मर जाएंगे, ठीक है. तो सिर्फ एक टॉपिक एट अ टाइम, उसी पे फोकस करो, उसी को करो. सो ये एक सैंपल शेड्यूल है जो तुम कर सकते हो. अपने हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज करो. सुबह कितना टाइम है, शाम को कितना टाइम है, कब क्या पढ़ना है, सुबह कॉन्ट करना है या इंग्लिश करना है, कब क्या तुम्हें सूट करता है, अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करो इसको, ठीक है. जो तुम्हें चीजें करनी है, स्टार्ट विद 1 आरसी अ डे. जब 1 आरसी अ डे के साथ रेगुलर हो जाओ तो 2 आरसीज पे शिफ्ट हो जाओ. ये तुमने करना ही करना है. फोकस इन्फ्रेंसेस पे करो, मेन आइडियाज पे करो. बीए क्वेश्चंस जब जब ब्रेक्स में टाइम मिले तब तब करते रहो. जितने करोगे उतने ज्यादा इंप्रूव करते रहोगे. डीआईएलआर में 1 से 2 सेट्स डेली, प्योर प्रैक्टिस है. पहले बेसिक कैलकुलेशन, टेबल्स, फ्रैक्शन, डेसिमल्स और अरिथमेटिक कवर कर लो, बेसिक, सो दैट द ग्राउंड इज सेट फॉर कवरिंग डीआईएलआर. इनफैक्ट इनिशियली एक सिंपल सेट दिन का कर सकते हो और अरिथमेटिक पूरा कवर कर लो, और बेसिक कैलकुलेशन, स्पीड मैथ्स, टेबल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वाली चीजें कर लो, सो दैट योर फाउंडेशन इज इन प्लेस फॉर सॉल्विंग डीआईएलआर सेट्स. मैथ्स में एक टॉपिक पर वीक करो, अगर कोई टॉपिक लंबा है तो उसको 2 वीक्स दे दो. स्कैटर मत करो, अलजेब्रा और अरिथमेटिक से शुरू करो और प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस करने ही करने हैं. मॉक कैट्स एवरी 7 डेज, पूरा अपने वीकेंड्स को दो. मिड वीक मत दो, वीकेंड्स पे करो और एनालाइज करो मॉक कैट्स को. विदाउट एनालिसिस अ मॉक कैट इज कंप्लीटली यूजलेस. हर हफ्ते करने की बजाय अगर नहीं कर पा रहे हो, अगर हर हफ्ते मॉक कर रहे हो पर विदाउट एनालिसिस कर रहे हो, उससे अच्छा है महीने में 2 कर लो विद एनालिसिस. दैट इज विल गिव यू बेटर रिटर्न. सो इस तरीके से अपनी प्रेप को स्ट्रक्चर करो. दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड बी डूइंग. रिमेंबर, योर जॉब इज नॉट एन एक्सक्यूज. एक्सक्यूज नहीं है ये तुम्हारे लिए. इट you can use your time perfectly well to optimize your preparation. इसके अलावा you need extra help, extra resources. I run the ultimate reading course which takes care of all your reading needs and takes care of all these formats. Even would have podcasts, even would have videos, would have articles on the go, WhatsApp पे चीजें जो वर्किंग प्रोफेशनल्स को चाहिए, which make it easier for them to read and improve their knowledge. रीडिंग कोर्स रीडिंग पे बेस्ड है और तुम्हारी नॉलेज बेस, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इनकी नॉलेज इंप्रूव करने पे बेस्ड है. दैट इज व्हाट आई एम टारगेटिंग विद दैट, सो दैट जितना तुम्हारे पास टाइम हो तुम उसमें एज अ रीडर इंप्रूव कर सको. रीडर इंप्रूव करोगे तो कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा, कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा तो मार्क्स इंप्रूव होंगे. सिंपल एज दैट. सो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम डूइंग. Hope to connect with you. Those of you who are struggling with your schedules, want more help, you can always reach out in the comment section. I'll try to help you as much as possible. And as I end every video, thank you very much for watching this video and happy learning.